Hello students. So I hope you are enjoying this chapter, the second chapter of economics. We are proceeding with the chapter, and we have already discussed the introduction part. Now we are proceeding with the comparison of the three major sectors around which the complete Indian economy is resting, and that is the primary, secondary and tertiary sectors. So we will have a comparative status of all the three sectors, because these three sectors are the sectors on which the whole economy is resting, not only in India but all over the world. So right now we are talking about Indian economics. So we will be discussing about the Indian economic system and its various stages through which the primary, secondary and tertiary sectors have developed. Okay. Now try to understand that lot of goods, definitely lot of goods and services are there which is produced through these three sectors: primary, secondary and tertiary. And of course a lot of people, how can I say lot of people, in fact the whole population in India are concentrated in and around these three sectors. That is, large number of people working in them. They are producing goods and services that are concentrated around primary, secondary and tertiary. So how much goods and services are produced, we have to understand कि which sector is contributing how much in the Indian economy. सबसे ज़्यादा प्राइमरी में मिलता है या सेकेंडरी में मिलता है या टर्शियरी में. How many people are employed in these sectors? How many people are working in these sectors? So what happens that in any economy, whether it's Indian or in other parts of the world, there are one or more sectors. Matlab, of course, not only, there can't be a single sector where all the people are working. कि सारे लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं या ऑल द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी. नो, different groups are there and people from different categories are involved into these groups. Got it? So one or more sectors which are dominant. Any country, any economy, only one sector or more than one sector are dominant. अगर एक ही सेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा तो डू यू थिंक द अदर सेक्टर्स विल डेवलप? दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग चिल्ड्रन. ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई वुड बी सजेस्टिंग, आई वुड बी जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल जहाँ पे सपोज प्राइमरी सेक्टर बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो 80% of population if are involved in primary, then what will happen to secondary and tertiary? क्या होगा उनका? या फिर और फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी इज इंपॉर्टेंट, तो कैन प्राइमरी एंड टर्शियरी सर्वाइव? चारों तरफ गाड़ियां चल रही हैं, रेलवेज आर देयर, कम्युनिकेशन इज देयर, only this becomes important. तो how will the primary and tertiary function? Or tertiary becomes important, what will happen to primary and secondary? Imagine, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है चिल्ड्रन कि इंडिया की सारी जनता 80 to 85% of population if goes and settles in the offices, सारे लोग जाके ऑफिसेस में काम कर रहे हैं. Nobody is seen in the agricultural field. Can you imagine it? ओ गॉड, इट्स सो, आई मीन मैं तो सोच के भी डर जा रही हूँ कि एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई भी काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास दाल कहाँ से आएगा? ये जो चावल हम खाते हैं, आई लव राइस,
There won't be anybody in the field growing rice or growing wheat. So how will it happen? And who will take care of our food? फूडिंग, क्लोथिंग, इन सब का कौन देखभाल करेगा अगर सारे लोग ऑफिस में जाके काम करेंगे? ठीक है. सो आई वॉज जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन. द सेम एग्जाम्पल वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल. गॉट इट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेस and know the total production in each sector. We have to understand that what actually is the contribution of primary or the secondary or the tertiary. So with so many thousands of goods and services produced, itne sare goods and services are being produced. Now try to understand, this is an impossible task. So कैसे पता लगाएंगे ना? दिस टास्क वुड बी इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा है. एंड यू विल ऑल्सो वंडर, just now that I was discussing, that how we can add up cars and computers and nails and furnitures. It won't make sense. क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कार्स बना रहे हैं, कंप्यूटर्स बना रहे हैं? एंड चिल्ड्रन, हम भूल जाते हैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं. देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स जिसके बिना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट पॉसिबल. हम सोच भी नहीं पाते उन सब चीज़ों के बारे में. नाउ चिल्ड्रन, वन थिंग दैट इज़ कमिंग टू माई माइंड, मैं आपसे बस ऐसे ही बेटा डिस्कस करना चाह रही थी कि वेन एवर समबडी आस्क्स अस व्हाट एक्चुअली डू you want to become or what actually do you aspire to do, तो आप डॉक्टर और इंजीनियर ही सोचते हो. क्या कभी सोचा है कि कार्स जो बन रही हैं उसमें जो नट बोल्ट लगा हुआ है, उसमें जो घर में जो कीलें लगी हुई हैं, ये कीलें कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं? ये तार जो लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के तार, ये तार कहाँ पे बन रहे हैं? मतलब यू कैन थिंक ऑफ वेरियस एवेन्यूज. अपने आसपास आंखें खोल के देखा करो किन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो. गॉट इट? दैट इज इम्पॉर्टेंट. डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारा काम है जो आप कर सकते हो बेटा. सो अगर इफ़ यू आर थिंकिंग सो, आप सोच रहे होगे ना हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर. तो to get around this problem, try to understand economics क्या करते हैं. what do the economics you do, how do they calculate that values of goods and services. मतलब all the goods that are there in the country, जितना भी सामान है, and the people who are providing the services should be used rather than adding up the actual numbers. एक्चुअल नंबर्स को ऐड करने के अलावा मीन्स दीज मैनी कंप्यूटर्स आर देयर, दीज मैनी कार्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड, इतने सारे फर्नीचर्स, इतनी सारी कुर्सियाँ बनी, इतने सारे डेस्क बने. एंड इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट, सपोज 10,000 kgs ऑफ वीट इज सोल्ड. ठीक है, 10,000 किलो वीट जो है, 10,000 किलो इज वेरी लेस. आई मीन द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, 100 करोड़ की जनता जो है, उसके लिए 10,000 किलो गेहूँ तो मतलब बहुत कम है. इतना तो गेहूँ एक स्टेट में ही यूज़ हो जाता होगा. दैट काइंड ऑफ फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड. तो वीट का वैल्यू 8 रुपीज़ पर केजी में हमने 10,000 किलो गेहूँ बेचा. तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ दैट वीट? 80,000. नाउ द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट ₹10. 5,000 कोकोनट अगर हम काउंट करें, द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स, ₹10 पर कोकोनट, कितना हो गया? 50,000. सेम वे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप. तीनों सेक्टर के सर्विसेज को जोड़ के, तीनों सेक्टर्स के लोगों को जोड़ के वी एड अप
separately what is the contribution of the primary sector, what is the contribution of the secondary, and then the tertiary. So separately we calculate these sectors and the income that is happening in these sectors. Got it? Now you have to remember, एक चीज याद रखने वाली क्या बात है, one precaution has to be taken. ठीक है, एक चीज में हम लोगों को ना थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. क्या चीज ध्यान देने वाली बात है? एवरी गुड, जितना भी सामान है और सर्विस, ठीक है, जितना भी सामान है या वॉट एवर सर्विसेज वी आर गेटिंग, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड. एवरीथिंग हैज टू बी काउंटेड. सब चीज, जितना वॉट एवर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, वॉट एवर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, दैट नीड्स टू बी काउंटेड. तो we need to understand that what would be the final good and the service. Example, ऐसे नहीं समझोगे बेटा, अभी आगे बुक में भी, चैप्टर में भी बहुत सारा एग्जाम्पल है. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, सबसे पहले कॉटन, ठीक है, यार्न, धागा, मुझे बहुत हिंदी अच्छा लिखना नहीं आता, ठीक है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू, धागा, ठीक है, I can't write in Hindi, I'm not allowed to. Cotton, yarn, spinning, मतलब क्लोथ बना, and then short. तो अभी मैं क्या बता रही हूँ, what is being explained here, are we counting cotton अलग से, यार्न अलग से, कपड़ा अलग से काउंट करेंगे, और आर वी कैलकुलेटिंग जस्ट द शर्ट? वी इंक्लूड ऑल दीज थ्री कॉस्ट इन द शर्ट. तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग कितना कॉटन लगा, कितना धागा लगा, कितना कपड़ा लगा, बटन्स कितनी आई, हम ये सारा अलग अलग कैलकुलेट नहीं करके व्हाट डू, वी जस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द शर्ट. अभी देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, फाइनल गुड. इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड. तो फाइनल गुड का मतलब है हम कॉटन, यार्न, क्लॉथ, ये सब काउंट नहीं करेंगे. हम क्या काउंट करेंगे, मतलब कंट्री में हाउ मच कॉटन इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच धागा इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड, ये नहीं काउंट करके हम क्या काउंट करेंगे, इन अ ईयर हाउ मेनी शर्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड. नाउ यू माइट बी इमेजिनिंग ना, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. चिल्ड्रन, यस इट इज कैलकुलेटेड. And believe me that when we do these kind of business calculations, we calculate, and the calculations that come, it also stands around crores. करोड़ों लोग हैं जो कि करोड़ों तरीके के शर्ट पहनते हैं, लाखों तो बच्चे ही हैं. Imagine the children who are there. ठीक है, अभी दूसरा इंस्टेंस ले लो, एग्जाम्पल दिया हुआ है. देर इज अ फार्मर, ओके, गेहूं बेच रहा है वो, ही इज सेलिंग व्हीट टू अ फ्लोर मिल. आटे की कंपनी में ले जाकर उसने गेहूं सेल किया, कितने का, ₹8 पर केजी, 8 रुपये का. मिल ग्राइंड्स द व्हीट, मिल ने आटा बनाया, गेहूं का क्या बना, आटा, एंड सेल्स द फ्लोर. वो आटा कहाँ गया, दैट फ्लोर इज गोइंग टू अ बिस्किट कंपनी. 8 रुपये में गेहूं पड़ा, 10 रुपये का आटा पड़ा. एंड बिस्किट कंपनी ने क्या किया, दे हैव यूज द फ्लोर एंड शुगर एंड ऑयल एंड 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट वॉज मेड. एग्जाम्पल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. और बिस्किट को दे आर ब्रिंगिंग इट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स फॉर ₹60. दैट इज 4 पैकेट है ना चिल्ड्रन, इट्स 4 पैकेट्स.
15 rupees per packet. So the thing what is reaching to the people is the biscuit. So goods that reach the consumer. लेकिन इसमें क्या क्या चीजें थी? Wheat, flour, you can say आटा, flour, sugar, घी, और उसमें कुछ मतलब कुछ फ्लेवर भी डाला होगा ना, एंड देन इट बिकम्स बिस्किट. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स वी हैव नॉट एडेड इन इट. क्या क्या नहीं ऐड किया है? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर. हाँ, आपको क्या लग रहा है पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा बिस्किट को बनाने में? और ये बिस्किट के जो पैकेट्स बने वो तो हमने अभी काउंट ही नहीं किया पैकेट. उसके बाद ये बिस्किट व्हेन इट इज रीचिंग टू द मार्केट, दिस बिस्किट इज कॉस्टिंग, फाइनल गुड इज ₹60. Value of flour is ₹10. Similarly, value of all other intermediate goods would have been included. बीच में जितनी भी सारी चीज़ें थी ना, this is all included. तो to count the value of the flour and wheat, इस आटे का कैलकुलेशन करना है, wheat का कैलकुलेशन करना है. ठीक है. तो अभी देखो क्या था यहाँ पे, व्हाट दे आर सेइंग, टू सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड टू काउंट द वैल्यू ऑफ बिस्किट सेपरेटली. तो सेपरेटली अलग अलग चीजों को नहीं कैलकुलेट करके वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ same things a number of times, first as wheat, then as flour, finally as biscuit. We are definitely not doing that. हम ये काम नहीं कर रहे हैं. So the first point that comes here is, please try to understand children, you have to give this explanation when it is asked what is GDP. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक जो घर में बना है. गॉट इट? सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स चिल्ड्रन, अगेन आई एम टेलिंग यू, हम फाइनल गुड कैलकुलेट कर रहे हैं. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग ऑल द मटीरियल दैट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग दैट गुड. फाइनली हमको बिस्किट मिल रहा है. उसके पहले जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, फाइनली हमको क्या मिल रहा था? शर्ट. So all the goods that have been used in making that product, we are not calculating all that. वो सारा हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. So the value of final goods and services produced in each sector during a particular year, एक साल में ये जो सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं, it is providing the total production of the sector for that year. एक साल में पार्ले जी ने कितना बिस्किट बनाया. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग उसमें कितना क्विंटल आटा लगा, हाउ मच फ्लोर दे हैव यूज्ड, हाउ मच शुगर दे हैव यूज्ड, हाउ मच घी दे हैव यूज्ड, एंड हाउ मच ऑफ फ्लेवरिंग दे हैव यूज्ड, पाइनएप्पल फ्लेवर बिस्किट, ऑरेंज फ्लेवर बिस्किट, एंड सो मेनी फ्लेवर्स. ओके, सो दिस इज व्हाट the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. उस साल में उस सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया ये जो है पता करते हैं. and sum of production in the three sectors give what is called as GDP, gross डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगेन आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रन, इसको ठीक से समझना. होल चैप्टर में यू विल बी फाइंडिंग GDP. तो इफ योर
एक्सप्लेनेशन फॉर जीडीपी इज नॉट क्लियर, तो आप बाकी की चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. सो यू नीड टू एक्सप्लेन अबाउट जीडीपी. सो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स and services produced during a particular year is the total production of the sector for that year. GDP. All the three sectors ना. अभी देखो, we are talking about biscuit. Got it? Just now अभी हमने क्या एग्जाम्पल लिया? बिस्किट का एग्जाम्पल लिया. क्या चीज़ से बना है? आटे का. ये हो गया सेकेंडरी. आटा क्या चीज़ से बना है? व्हीट से. ये हो गया प्राइमरी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिल के हमको दे रहे हैं टर्शियरी. बिस्किट को हम टर्शियरी में क्यों रखेंगे? क्योंकि इट हैज़ बीन टेकन फॉर मार्केटिंग. मार्केट में ले जाया गया है बिस्किट को ट्रांसपोर्ट की मदद से. उसमें ऑफिस में भी काम हुआ होगा कि इतने पैकेट बिस्किट बने हैं, इतने पैकेट बिस्किट का इतना टैक्सेस है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दैट, इन द कैलकुलेशंस. गॉट इट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी जीडीपी समझ में आया? आई होप नाउ द जीडीपी इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन. इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री. किसी भी कंट्री में ना. जीडीपी ये नहीं है कि अमेरिका का जीडीपी अलग कैलकुलेट होता है एंड इराक का जीडीपी अलग. नो, द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी हैपन्स इन द होल वर्ल्ड विद द सेम मेथड. इसी तरीके से कैलकुलेट होता है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. Got it? Yes. So GDP shows how big the economy is, and it is always including primary, secondary and tertiary sectors. India में क्या है? The mammoth task. Mammoth means very big. बड़ा से बड़ा काम. वेरी बिग टास्क. सो इंडिया में द मैमथ टास्क, ये जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग इट. एंड ऑब्वियसली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, दे आर कैलकुलेटिंग ऑल द थ्री. सो व्हेन दे आर कैलकुलेटिंग ऑल द थ्री, कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट डू इट अलोन? नो बेटा. It is with the help of various government departments. Many departments are involved in this calculations. Try and understand that. So this ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects information. They do collect the information. Okay? Not only from the states, from the union territories as well, relating to total volume of goods and services and their prices, and then estimates the GDP. Because we have to do the calculations state wise also. और state कैसे calculate करते हैं? The state calculates the GDP with the calculations of different cities. Cities calculated with the calculation of different villages. Villages calculated at the local level whatever manufacturing has been done. Got it? तो आप देख लो कि कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा है. The work of all these sectors are happening on such a large scale. Okay? Departments of all states and union territories collects information, all the volume of goods and services and the prices, their estimates, and this way the calculations happen. Clear? Good.
changes, lot of changes had happened in all the sectors. We have seen, we have noticed from the histories, I mean from the past. देखो history is involved everywhere. हर जगह पे we need to calculate the history. ठीक है, until and unless we calculate the history, मतलब पिछला जब तक calculations को नहीं समझेंगे, आने वाली चीज़ों की calculations को children we couldn't understand. हम नहीं समझ पाएंगे. So we need to understand what has been noted from the history of many now developed countries, that at initial stages of development, jab development happens, when the development starts, primary sector was the most important sector. और किसी को कुछ आता नहीं ना था. Try to understand. You will think, why only primary? Why not secondary and tertiary? Because, my dear children, at that time education was not that important. Calculations were not happening on such a large scale. So the only sector that was working very nicely and properly was primary. सारे लोगों को एक ही काम आती थी, करना आता था. So everybody was involved in agriculture. Then method of farming changed. We are talking about history. Imagine 1000, 2000 years before, Gupta dynasty, Maurya dynasty, the Mughals, all these people. How did they live? How did they stay? What was their mode? Okay, so agriculture sector started changing. The first ever changes that had happened was in the agricultural sector, and it began to prosper, बढ़ने लगा. It produced much more food than before, and especially after the Green Revolution. Many people could now take up other activities. खाली agriculture में नहीं involved थे. People started understanding that other activities are also important. खाली एग्रीकल्चर में नहीं रहना है, और भी बाकी के भी चीज़ की काम कर सकते हैं. Many people could now take up other activities, and not only agriculture, there were other activities, other employments also available for the people. What was that? Craft persons were there, traders were there. ठीक है, जो क्राफ्ट का काम कर रहे थे, जो ट्रेडिंग का काम कर रहे थे, बाइंग द गुड्स, सेलिंग द गुड्स इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स. पहले 10 रुपीज़ की सेलिंग होती थी, बट आफ्टर दैट द एरा चेंज्ड एंड द सेलिंग एंड बाइंग स्टार्टेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. इसके अलावा क्या था? देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी. अभी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ हिस्ट्री. देयर वेयर ऑब्वियसली उस समय भी तो गांव से शहर हुआ करते थे. यस, इन दोज टाइम्स ऑल्सो देयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज एंड सिटी. सो पीपल यूज टू कम टू द सिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. ओके, गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, बैलगाड़ी हुआ करती थी, बट सम मोड ऑफ कम्युनिकेशन वॉज नीडेड, सम मोड ऑफ कम्युनिकेशन वॉज देयर. ओके, सो व्हाट वॉज दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन? वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट. लेकिन इस स्टेज में क्या था? वॉट एवर गुड्स वे आर प्रोड्यूस्ड वेयर नेचुरल प्रोडक्ट्स, all available from nature. Agriculture was also something very natural, and from the primary sector most people were also employed in this sector. प्राइमरी के अलावा क्या क्या चीज़ें थी? I mean there was agriculture. 80% of population was involved in agriculture, लेकिन 20% तो थे जो कि ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे. So we are talking about those sectors.
Gradually and slowly what happened, children? बहुत दिनों तक, over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced. मशीनें लग गई, manufacturing was happening, initially it was happening in a very traditional method, but now the method changed, and with the changing method things started changing. बहुत सारे और भी changes होने लग गए. वो changes, what were these changes? We will be understanding that. Factories came up and started expanding. So people who had earlier worked on farms, पहले farms में जो खाली agriculture में काम थे करते थे, now they began to work in factories in large numbers. मतलब from farms people started coming to factories. सिर्फ खेतों में नहीं काम करके अब क्या हो रहा था, लोग फैक्ट्रीज में भी आ गए थे. वहाँ से आने के बाद कहाँ जा रहे थे? कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू चिल्ड्रन, एंड ऑल द बेस्ट टू यू चिल्ड्रन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.